In last class, we were doing this only, performance appraisal. Huh? I think all these methods are clear to you all. Many of you were not there. All these method was done, but still many of you are new today. They were not present in last class, so better focus. See, we had discussed why this what is performance appraisal? What is performance appraisal? Good. Why it is done? Motivation. What else? What else? Not only one. Whether there is chance for training or there is chance for promotion, development even. Yes. So these things have been checked with the help of performance appraisal or by doing performance appraisal. Other than that, we discussed. What else we discussed? We discussed process also. Okay, and now the third subtopic is method. And this is only the topic of attention. This is the main thing, or this is the main part from where questions have been asked. Okay, so it is divided into two method. First one is traditional method. Second one is modern method. Right? If we talk about first method in traditional method is ranking method. The way we know ranking is done right from our school life, rank 1, 2, 3, 4, 5 means comparative to other where you stand. That is only ranking method, right? You see, it is the oldest and simplest formal systematic method of performance appraisal in which employee is compared with all others for the purpose of placing order of worth. Means how many of you are here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 students. Among 7 students, it means we can take one character. This character has not been taken, just test is conducted, and with that test, people have been selected that this is first, this is second, this is fourth, likewise. Fine. This is the ranking method. It is the most oldest method of all, right? All those methods which you are taking a glance over here. Among them, this one is oldest one. Okay, there can be a possibility that they can ask that which one is the oldest method. So ranking method is the oldest one. Fine. It is the simplest formal systematic order. Just it is to check that whose worth is more comparative to other. The employees are ranked from the highest to the lowest or from the best to the worst. Okay. In doing this, employee who is the highest on the characteristics being measured and also the one who is L, that is lowest, are indicated. And then the next level and the next lowest between next highest means same way. I think you are able to explain, able to understand that among 7, who is the best will be ranked 1, then rank 2. This is only it is trying to explain, right? I have tried that all the sentence means you will not hardly find any difficult word, but still if you find, you are free to ask. Next one is limitation. Limitation also we had discussed in our last class. What were the limitation? Okay, how much better or worse one can be, just we are reading out. How much better means what scale you are measuring on. Other than that, other than the point you are able to see, just use your common sense. What can be the problem of ranking method? For what purpose? Take it. If we talk about limitation, use your common sense. What else do you think that limitation can be there? Yes, it is useful only in a small organization. We had discussed in our last class, Aditya. Yes, it is useful only for where in any organization where employees are 2,000, 3,000. We cannot rank each and every employee, right? We can only rank to in a small organization only. Other than that, one can be good at writing, one can be good at speaking, right? We are ignoring all these characteristics. Bhaskar, you go and drink water. You're not fresh. Either drink water or wash your face. Okay, then. Next limitation, what we discussed, that all characteristics we are not taking.
Fine. This is the greatest limitation, because one can be good in other characteristics even, but we are ignoring that. Fine. And yes, favoritism, this limitation will be in all the traditional method, because rater, how much you are closer to that rater, the one who is ranking you or one who is evaluating you, it is very much important that how close you are to that. So that's why favoritism chances are there. This will automatically come in all the traditional method. Okay, favoritism, biasness problem, these will always be there. Fine. Yes, that will come in that point only, that all characteristics is not possible to find out in ranking method only. Through one characteristics only we are ranking all the employees. Clear to you all? Do I need to be in Hindi also? शक्ल बता रहा आपका. Next one is paired comparison. What do you mean by paired comparison? Here, that limitation of ranking method is being overcome in paired method. Like we discussed in our ranking method, that we don't take all the characteristics, but in paired method, taking one trait, we compare to each and every individual. Mean to say, for example, I will take punctuality as one trait. Okay, punctuality is one trait, and with this punctuality, I will be comparing with each and every pair. And pair formula I have already discussed. How many pairs will be there? Like 7 students are there. How many pairs then? N into n minus 1 divided by 2. This is the formula. Okay. So accordingly, this much pair will be done. For example, punctuality I am taking, and I am comparing between first Aditya and Anurag. Okay. Then Aditya, and see here, example is also given. See, n into n minus 1 by 2. For example, here you see how many members are there? 5. 5 minus 1 divided by 2. 10 pairs will be in total. And here's the pairing system. First, he have taken K, and then he have compared with all the employees. Then they have taken M. Then they have compared with all the employees. Same way R and V. Understood? So first candidate, if I will pick, like Aditya I am picking, then first I will be comparing Aditya and Anurag in punctuality. Then Aditya and Krishna. Then Aditya and Bhaskar, Aditya and Rohit, and so forth and so forth. Right? This way we are going to compare. Next one, is it clear? Huh? Yes. Okay, from that time you're calculating only. Next one is grading method. In grading method, remember last class? Yes, we are grading. Remember percentage we had taken. This time, the grading system in 10th also is on this category only. That in order to avoid competition, what we are doing, right from 90 to 100, outstanding. Huh? Class interval. It is not class interval. Don't go on this statistic. What I'm trying to say, percentage, for example, you take 90 to 100 percentage who have scored, they will be coming under outstanding category. Same way, 80 to 90 will come under average good category. And then again, 80 to 70 will come under average category. Okay, this is the way to do grading. Here, what we are doing, we are taking group of employees who have scored from 90 to 100. Understood? Yes, we are doing groupism, or we are making grouping, or we are, what you said, classification we are doing. You can use this word even. Yes, we are making the group. At a time, we are taking 90 to 100 or 80 to 90. Is it clear? Everyone? Next is for, remember at last, you have to speak what have you understood. If you are not understanding, better discuss then and there only. Because as soon as I complete, you will have to tell all the answer, which I will be asking. You will have to explain what you have understood from these. Next one is force distribution. Remember? Force distribution. You people were there in the class. Then you were doing active listening also. You were writing even. Where's that writing part?
For distribution in this method, the returns forced with a particular work, in a specific work. You see that what happens, that there's leniency problem. Means few rater what they do, that they give just average marking and then leave the performance appraisal method. In order to avoid this leniency effect, what it has been done, that raters are asked to force that you cannot give more than 10% excellent marking. You cannot give more than 20% good. You cannot give more than 30% as average. Getting my point? फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या हुआ कि आप 10% से अधिक, यही चीज मैं बोल रही हूँ, सिर्फ लेक्चर पे ध्यान दीजिए, वो घर वाला पार्ट है, हिंदी बोल रही हूँ, हटाइए उसको। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए लोग एवरेज मार्किंग दे करके खत्म हो जाते हैं, ठीक है, चलो हो गया, या नहीं तो किसी एक फेवरेट लोगों को ऊपर मार्किंग दे देते हैं, या फिर सबको दे देते हैं, भाई सब लोग खुश रहो, ताकि सबऑर्डिनेट और सुपीरियर का रिलेशन अच्छा हो। यस, तो ये चीज को अवॉइड करने के लिए ये फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड निकाला गया है कि आप 10% से अधिक लोगों को एक्सीलेंट नहीं दे सकते, ठीक है, आप 10% लोगों को ही देंगे, 20% लोगों को ही आप गुड देंगे, 30% लोगों को ही आप एवरेज देंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वी आर फोर्सिंग दैट यू हैव टू गिव ओनली 10% पीपल एक्सीलेंट। ये हुआ आपका फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। क्लियर? ज्यादा फोकस आपका मेरे वर्ड्स पे होना चाहिए। ये मैं पीडीएफ आप लोग को सेंड कर दूंगी। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए फोर्स चॉइस मेथड। क्या था ये? हो गया, सुनिए। फोर्स चॉइस मेथड, हाँ, देखिए फोर्स चॉइस यानी चूज करने के लिए आपको फोर्स किया जाता है। लाइक अगर मैं सिर्फ किसी का तारीफ ही कर रही हूँ, ठीक है, बुराई कर ही नहीं रही, तो दिस इज अगेन बैड। तो इस चीज को अगेन अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है कि आपको लिस्ट बना रहेगा, नेगेटिव क्वालिटी का लिस्ट बना रहेगा, पॉजिटिव क्वालिटी का आपको चूज करना होता है। 5 स्टेटमेंट कम से कम आप चूज करेंगे पॉजिटिव एक्टिविटी में, 5 स्टेटमेंट कम से कम आप चूज करेंगे नेगेटिव एक्टिविटी में। अंडरस्टूड? दिस इज फोर्स चॉइस मेथड। लोग कंफ्यूज होते हैं फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में और फोर्स चॉइस में, क्योंकि दोनों वर्ड सिमिलर है, दोनों फोर्स फोर्स्ड है, कंफ्यूज करते हैं। तो यू डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि उधर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन वाला हो गया 10% 20% की कैटेगरी में। चॉइस मतलब क्या, ऑलरेडी इट इज गिवन, यू हैव टू चूज, ठीक है, जैसे 5 नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, 5 पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? ये हो गया आपका चूज करने वाला पार्ट। नेक्स्ट इज योर चेकलिस्ट मेथड। चेकलिस्ट में देखिए बस आपको यस और नो टिक करना होता है। जैसे यहाँ देखिए, इज रेगुलर ऑन द जॉब, यस और नो। डज मेंटेन डिसिप्लिन वेल, यस और नो। इसमें देखिए खासियत क्या है कि रेटर कितना कंसिस्टेंट है, ये चेक करने के लिए कुछ डुप्लीकेट स्टेटमेंट भी बनाया जाता है, लेकिन थोड़ा ट्विस्ट करके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, डज मेंटेन डिसिप्लिन वेल, अरे सुन तो लीजिए, डज शो कंसिस्टेंट बिहेवियर टू ऑल स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट है। और अब ये स्टेटमेंट पढ़िए, डज शो अ फेवरेटिज्म टू पर्टिकुलर स्टूडेंट। तो डज शो और ये वाला थर्ड वाला दोनों आपको मैचिंग नहीं लग रहा, सेम नहीं लग रहा है। डज शो कंसिस्टेंट बिहेवियर टू ऑल स्टूडेंट, यानी हर स्टूडेंट को एक तरह देखते हैं। नेक्स्ट वन इज डज शो फेवरेटिज्म टू पर्टिकुलर स्टूडेंट, दोनों स्टेटमेंट सेम है। तो ये चीज क्यों जानबूझ के किया जाता है, ताकि वो रेटर कितना कंसिस्टेंट है वो चेक करने के लिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे नो दे दिया, यहाँ यस दे दिया, मतलब फिर गड़बड़ है, ठीक है। क्लियर आ गया? तो चेकलिस्ट मतलब जस्ट चेक, बस इतना ही करना होता है रेटर, राइट? यानी यू हैव टू चूज बिटवीन यस एंड नो, दैट्स इट, फाइन। लेट्स प्रोसीड नाउ। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, रिमेंबर आई थिंक we had discussed, given a long example in that critical incident method. Any surprise situation can come which we were not expecting, that is critical incident। मतलब हम expect नहीं कर रहे थे, अचानक से कुछ change आ गया, और उस change को आप लोग being an employee कैसे handle कर रहे हैं, and that change can be good even, can be bad even, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये क्रिटिकल इंसिडेंट में चेक करते हैं कि कुछ अगर हम चेंज लाए ऑर्गेनाइजेशन में,
तो एम्प्लॉय इसको पॉजिटिवली हैंडल किया या नेगेटिवली हैंडल किया, तो ये क्रिटिकल इंसिडेंट के अंदर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड। ग्राफिक रेटिंग में ये रहा परफॉर्मेंस रेटिंग, यहाँ पे परफॉर्मेंस फैक्टर सेम वे टेबल ऑफ फॉर्म में लिखा हुआ है। क्वालिटी ऑफ वर्क अगर डिस्क्रिप्टिव में अगर आप इस तरीके से बना देते हैं तो आपका मार्किंग और बेहतर होगा, इसलिए मैंने ये पिक्चर भी ऐड किया है, राइट। क्वालिटी ऑफ वर्क अब इसमें लिख लिए कंसिस्टेंटली अनसेटिस्फैक्ट्री, ठीक है, ओकेजनली अनसेटिस्फैक्ट्री, कंसिस्टेंटली सेटिस्फैक्ट्री, समटाइम्स सुपीरियर, कंसिस्टेंटली सुपीरियर। ठीक है, यानी आपका शुरू से परफॉर्मेंस देखा जाएगा, राइट। ऐसा नहीं कि जिस टाइम क्या होता है, जिस टाइम रेटिंग करते हैं उस टाइम बहुत एम्प्लॉय होते हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए ये ग्राफिक रेटिंग मेथड रखा गया है। यहाँ पे हर चीज का एक मार्किंग अलॉट किया जाता है, आप जिस कैटेगरी में लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मार्किंग मिलेगा। ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड, ठीक है। ऐसे मेथड इज सिंपल। अगर मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आपको लिखना है, फॉर एग्जांपल सरोज के बारे में लिखना है ऐसे मेथड में, तो वो वहां पे सारा चीज लिखा जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या कभी क्या बदमाशी किया, कब क्या सही काम किया, कब अच्छा काम किया, सारा चीज हम लोग ऐसे के फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ मेथड है आपका, एक परफॉर्मेंस अप्रेजल का ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। ठीक है, ऐसे मेथड इसमें ऑलमोस्ट सारा चीज लिखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सारा कुछ। फील्ड रिव्यू मेथड क्या है आपका? करेक्ट। और प्लस ये कब होता है, जब हमको सस्पेक्ट होगा कि ये रेटर जो है बाइसनेस कर रहा है, ये चीज को चेक करने के लिए आपका फील्ड रिव्यू मेथड होता है। ठीक है, यानी यहाँ थर्ड पर्सन आकर के चेक करते हैं कैसा परफॉर्म कर रहा है, राइट। कॉन्फिडेंशियल नेम ओनली जस्टिफाई, दैट इज कॉन्फिडेंशियल, मतलब ये होता है जनरली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऐसा होता है, द ट्रेडिशनल वे ऑफ अप्रेजिंग एम्प्लॉय मेनली इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यानी हम इस तरीके से रेट कर रहे हैं जो एम्प्लॉयज को पता नहीं चल रहा है कि हम आपको रेट कर रहे हैं। ठीक है, जनरली हम कब करते हैं, जब हमको ट्रांसफर करना होता है, तो किसको ट्रांसफर करेंगे, तो हम लोग सीक्रेटली वॉच करते हैं एम्प्लॉयज। ठीक है, दिस इज कॉन्फिडेंशियल, यानी वो रिपोर्ट जो है शेयर नहीं किया जाता, राइट। ये था सारा ट्रेडिशनल मेथड। आई होप ऑल द ट्रेडिशनल मेथड आर क्लियर। गो बैक टू दिस ग्राफ एंड लेट मी नो। क्लियर है ट्रेडिशनल मेथड? रैंकिंग, पेयर्ड, ग्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, चॉइस, चेकलिस्ट, इंसिडेंट, ग्राफिकल, एसे, फील्ड रिव्यू, कॉन्फिडेंशियल, ये सारा था ट्रेडिशनल मेथड। अब आ जाइए मॉडर्न मेथड में, एमबीओ। ये तो अच्छे से याद होगा, ये तो आप लोग एकदम शॉर्टकट मार के सारा क्वेश्चन पूछे थे। नहीं मैम, तो क्वेश्चन लिखे क्या तब आप? तो एमबीओ नहीं समझे थे? फिर क्या हो गया? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, दिस इज द फर्स्ट मॉडर्न मेथड। ये पीटर ड्रकर प्रोपाउंड किए हैं ये कॉन्सेप्ट। इसमें यहाँ पे 1954 में प्रपोज हुआ है। अब ईयर हार्डली पूछे लेकिन नाम जरूर पूछता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं हम, गोल के ऑब्जेक्टिव को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद जो सुपीरियर है, सबऑर्डिनेट है, सब लोग मिलकर के बैठते हैं और फिर वो गोल को कैसे अचीव करना है हम लोग काम को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, कि तुम ये वाला डिपार्टमेंट हम देखेंगे, ये डिपार्टमेंट तुम देखना, ये डिपार्टमेंट तुम देखना, इस तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। फाइन। और उसके बाद फिर लास्ट में रिव्यू करते हैं कि आपका जो कमिटमेंट था पूरा हुआ कि नहीं, आपका कमिटमेंट जो था पूरा हुआ कि नहीं। ठीक है, दिस थिंग वी डू इन एमबीओ। सी प्रोसेस वेयर बाय द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट मैनेजर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन jointly identify its common goal। ऐसे तो बहुत लंबा है लेकिन अब समझ में आएगा अगर ध्यान देंगे तो। जो चीज मैंने आपको कहा है वही चीज है। प्रोसेस वेयर बाय सुपीरियर, ठीक है, 3 स्टेप में बांटेंगे इस इतने लंबे चौड़े डेफिनेशन को। पहला, इट इज अ प्रोसेस। दूसरा स्टेप जहां पे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट
मैनेजर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंटली आइडेंटिफाई इट्स कॉमन गोल, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट मिलकर के कॉमन गोल को आइडेंटिफाई करता है, डिफाइन ईच इंडिविजुअल्स मेजर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टर्म ऑफ रिजल्ट एक्सपेक्टेड ऑफ हिम एंड यूज दीज मेजर्स एज गाइड्स फॉर ऑपरेटिंग द यूनिट एंड असेसिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच ऑफ इट्स मेंबर। यानी गोल को हम पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और लास्ट में हम देखते हैं कि आपका क्या क्या कमिटमेंट है, जितना आपने कमिटमेंट किया था वो आपने अचीव किया कि नहीं। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में आपका डेफिनेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ये होता है आपका MBO। इसके अलावा लिमिटेशंस भी ऐड किया गया है। लिमिटेशंस, अनमेजरेबल ऑब्जेक्टिव कई बार हम लोग सेट कर लेते हैं, राइट। इसके अलावा वेग, मैंने आपको ये भी कहा था कि वेग ऑब्जेक्टिव लाइक वी हैव टू डू गुड वर्क। ठीक है, इस तरीके से हम लोग डिस्कशन किया। गुड वर्क, बाकी एम्प्लॉय क्लियर ही नहीं है ये गुड वर्क का कैटेगरी क्या है, कितना करेंगे जो गुड वर्क होगा। ठीक है, तो ये हो गया, वेग ऑब्जेक्टिव नहीं सेट करना है, आपको क्लियर कट करना, बताना है कि इफ वी हैव टू डू गुड वर्क तो कितना काम करेंगे जो आप उसको गुड कंसिडर करेंगे। ठीक है, टग ऑफ अ वॉर, चूंकि कंपटीशन होता है तो वहां पे ये नहीं, ये जिम्मेदारी मेरी नहीं, वो जिम्मेदारी मेरी नहीं, इस टाइप का। टग ऑफ द वॉर मतलब क्या, खींचातानी। ठीक है, इसका होता है। फिर लैक ऑफ ट्रस्ट, सब पे ट्रस्ट मतलब मुश्किल होता है, ऑर्गेनाइज सुपीरियर जनरली सबऑर्डिनेट पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज बास मेथड, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। तो मैंने आपको याद है यहाँ बताया था ग्राफ, टीचर्स का जैसे मैंने आपको बताया था सेम। अब ये यहाँ भी मैंने ऐड कर लिया है, प्रोसेस यहाँ पे है। पहले क्या करेंगे, जनरेटिंग क्रिटिकल इंसिडेंट, यानी बिहेवियर क्या क्या आप कंसीडर करेंगे। अच्छा, ठीक है, लाइक मैंने एग्जांपल दिया था टीचर का, मार्कर नहीं है। फॉर एग्जांपल 1 to 5 स्केल हमने ड्रॉ किया। अब 5 स्केल पे हम किसको रखेंगे, जिसमें सारा क्वालिटी हो टीचर्स का, यानी टीचर का क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, बीइंग अ स्टूडेंट क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए टीचर में। हाँ, मतलब आप लोग स्टूडेंट हैं, आपको टीचर में क्या क्या क्वालिटी देखना होता है। गुड नॉलेज, स्पीकिंग स्किल, मैनेज यानी कंट्रोल, ठीक है, पंक्चुअलिटी, टेक्निकल नॉलेज, और चलिए 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बताया। ठीक है, तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग जिस टीचर में होगा उसको हम 5th स्केल पे रखेंगे, हाईएस्ट स्केल पे। अब मान लीजिए किसी में एक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर एग्जांपल पंक्चुअलिटी नहीं है तो आ गया थोड़ा नीचे। अब मान लीजिए किसी में पंक्चुअलिटी भी नहीं है, किसी में कंट्रोल करना नहीं आता, तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स घट गया तो आ गया 3 में। ठीक है, यहाँ मैंने रखा है आपका नर्स का कैरेक्टर बिहेवियर एंकर रेटिंग मेथड। देखिए यहाँ पे one skill पे sometime fails to follow doctor order, often impatient with difficult patient, doesn't always follow hospital procedure। ये 1 पे है। अब यहाँ 5th पे देख लीजिए, always follow doctor order, available to meet with doctors whenever needed, never impatient with difficult patient, काफी छोटा छोटा है, ये आप PDF में क्लियर हो जाएगा। हेल्प अदर, क्या है, नर्सेज विद डिफिकल्ट पेशेंट, ऑलवेज फॉलो हॉस्पिटल प्रोसीजर, और ईज पेशेंट फियर। ये सारा पॉजिटिव पॉइंट जिस नर्स में होगा उसको 5th रेटिंग है। और इस तरीके से जैसे जैसे नेगेटिव क्वालिटी बढ़ते चला जा रहा है वहां पे देखिए रैंकिंग घटते चला जा रहा है। ठीक है, यानी पहला प्रोसेस में हम क्या किया, बिहेवियर को हम पहले लिस्ट किए। ठीक है, क्या क्या बिहेवियर पर्टिकुलर पोजीशन में चाहिए, लाइक नर्स का यहाँ पे दिया हुआ है तो नर्स में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ प्रोसीजर भी अकॉर्डिंगली आप लोग लिख लेंगे। जनरेटिंग क्रिटिकल इंसिडेंट, यानी कौन कौन सा बिहेवियर जरूरी है। नेक्स्ट, डेवलपिंग परफॉर्मेंस डायमेंशन। ये स्केल आपका ग्राफिक स्केल, और ये 2 चीज आपका इसमें मिल गया। इसी लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी है ये मेथड। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड मॉडर्न मेथड में आ गया असेसमेंट सेंटर। क्या है असेसमेंट सेंटर, टाइम कंज्यूमिंग, कॉम्प्लिकेटेड टू डेवलप। अब मान लीजिए हम लोग गेस करके कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लिए, ठीक है, और
कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स छूट भी सकता है, राइट? तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग भी और कॉम्प्लिकेटेड टू डेवलप, डिपेंड ऑन एक्यूरेसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एंकर स्टेटमेंट। एंकर स्टेटमेंट मतलब जो रेटर जो बनाने वाला है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना नॉलेजेबल है। अगर नॉलेजेबल है उतना ही एक्यूरेट होगा, नॉलेजेबल नहीं है तो एक्यूरेट नहीं होगा। मस्ट बी अपडेटेड एज जॉब रिक्वायरमेंट चेंजेस, ठीक है? इसको जैसे रिक्वायरमेंट चेंज करेगा, जैसे अभी टीचर में जितना क्वालिटी आप बोले, ठीक है, टेक्निकल नॉलेज ट्रेडिशनल वाले में नहीं आएगा, लेकिन अभी टेक्निकल नॉलेज एक और ऐड किया, यानी अब के अकॉर्डिंग टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? तो ये क्या हुआ, रिक्वायरमेंट चेंज हुआ, ठीक है? तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी ऐड हो गया। तो सेम थिंग आपको बिहेवियर एंकर्ड मेथड में भी देखना होगा। एक जैसे जॉब का रिक्वायरमेंट चेंज होगा, आपको ये बिहेवियर भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? समझ आया? ट्रेडिशनल मेथड में जो टीचिंग मेथड था उसमें तो टेक्नोलॉजी से कोई मतलब नहीं था, राइट? वही चीज है, जॉब चेंज, रिक्वायरमेंट चेंज, टाइम चेंज, बिहेवियर चेंज। आया समझ? असेसमेंट सेंटर, असेसमेंट नाम बता रहे हैं एसेस करना, यस, एसेस कर रहे हैं आप यहाँ पे। तो एसेस में यहाँ पे जनरली सिलेक्शन मेथड में ये ज्यादा काम आता है, असेसमेंट मेथड, ठीक है? यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट सिमुलेशन मेथड करके दिखाते चेक करते हैं एम्प्लॉइज को, ठीक है, या जिसका सिलेक्शन करना है। समझ आया? सिलेक्शन मेथड में ये हम असेसमेंट मेथड यूज करते हैं। यहाँ पे हम सिमुलेशन मेथड करके, जैसे फॉर एग्जांपल रोल प्ले करवा के, ठीक है, इन बास्केट मेथड करवा करके, ट्रेनिंग वाला मेथड पढ़े हुए हैं ना, इन बास्केट करवा के कैसे वो जॉब को हैंडल करेगा, इस तरीके का चीज करवा करवा के हम लोग देखते हैं। तो असेसमेंट सेंटर में एक प्लेस होता है, वहां पे बहुत सारे रेटर रहते हैं, एक एक करके उस प्लेस पे बुलाया जाता है और उसको परफॉर्म करने बोला जाता है, ठीक है? इसीलिए असेसमेंट करना है और वो सेंटर पे बुला के कर रहे हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर सेंटर पे बुला के कर रहे हैं, दैट्स व्हाई असेसमेंट सेंटर। क्लियर? देखो, इन बिजनेस फील्ड असेसमेंट सेंटर आर मेनली यूज्ड फॉर इवैल्यूएटिंग executive supervisory potential. By definition, an assessment center is a central location where managers come together to participate in well-designed simulated exercise. They are assessed by senior manager, supplemented by psychologist and the HR specialist. नहीं, इसको सिर्फ सिमुलेशन मेथड नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक रेटर नहीं होते हैं आपको एसेस करने के लिए, सिमुलेशन मेथड यूज करके चेक किया जाता है। समझ आया? सिमुलेशन मेथड मतलब क्या समझते हैं आप? हाँ, सेम जॉब वाला इन्वायरमेंट, डुप्लीकेट इन्वायरमेंट हम लोग लेते हैं। वेरी गुड, डुप्लीकेट इन्वायरमेंट हम लोग जो क्रिएट करते हैं उसको, हाँ, तो आप भी वेरी गुड। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं सिमुलेशन मेथड, यानी हम डुप्लीकेट इन्वायरमेंट या आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट किए हैं, वो जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है? और चेक करने के लिए एक पर्सन नहीं है यहाँ पे, HR भी है, यहाँ देखिए साइकोलॉजिस्ट भी हैं, सुपीरियर भी हैं, सीनियर्स भी हैं, और ये 2 से 3 दिन तक भी चल सकता है, ठीक है? समझ आया? 360 डिग्री अप्रेजल, ये तो आप लोग लिख के आए हैं। पियर्स, पीस नहीं, यानी यहाँ जज कर, करेक्ट, 360 मतलब आपके चारों ओर सब जो भी रिलेटेड पर्सन है सबसे सबसे फीडबैक लिया जाएगा, ठीक है? आपके सुपीरियर आपके बारे में क्या बोलते हैं, आपके सबऑर्डिनेट क्या बोलते हैं, आपके पीयर्स क्या बोलते हैं, आपके कस्टमर्स क्या बोलते हैं, ठीक है? इन सब से ऑब्वियसली सारे लोग झूठ नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रेडिशनल मेथड का जो फेवरेटिज्म वाला जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है? क्योंकि सारे लोग तो फेवरेटिज्म शो करेंगे नहीं, राइट? सारे लोग अलग अलग अपना फीडबैक देंगे, तो उससे फिर ओवरऑल लास्ट में आप कंक्लूड करते हैं कि हाँ, दैट एम्प्लॉय इज गुड और बैड, ठीक है? कई बार ये 360 डिग्री थोड़ा एम्बैरेसिंग भी हो जाता है, क्योंकि करेक्ट, नहीं प्रमोशन हो वो सारा तो चलो तब कोई और अच्छा दे देगा, लेकिन जो नेगेटिव फीडबैक जैसे मिलते रहता है तो थोड़ा ह्यूमिलिएशन टाइप फील होगा, ठीक है? हाँ, तो ये होता है 360 डिग्री का
प्रॉब्लम। खैर हो भी गया। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड में हमने क्या डिस्कशन किया था कि भाई कंपनी का कॉस्ट कितना लग रहा है। हम अगर एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं, जैसे एक बंदे को अगर हम हायर करें, उसके ऊपर हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो कंपनी को कितना बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, तो इसमें कॉस्ट और बेनिफिट कंपेयर किया जाता है, राइट। इफ कॉस्ट इज मोर देन बेनिफिट, देन that employee don't deserve to be in organization. If cost is less than benefit, then obviously we try to retain that employee. Understood? This is cost accounting method. Means here we are very much limitation क्या हो सकता है? We are very much focused on quantitative method. Money oriented we are thinking. Yes, this is the greatest limitation of cost accounting method. इसके तो ये सारा था आपका मॉडर्न मेथड। यहाँ पे अगेन वापस आइए, कहाँ गया, ऊपर है ये मॉडर्न मेथड, एमबीओ, बिहेवियर एंकर रेटिंग स्केल, असेसमेंट सेंटर 360 और कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। सारा क्लियर हो गया? कौन समझाएगा बार्स? अरे भाई चार्ट देख करके ये देखिए, 1 मिनट नहीं, पहले मैं ग्राफ दिखा देती हूँ। ये रहा बार्स। One by one you explain. मार्कर यहाँ नहीं है। लास्ट क्लास में आप नहीं थे। लाइए पेन से ही समझा देती हूँ, कॉपी लाइए। देखिए जैसे आपने कहा, ये पहले मैंने स्केल किया, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये स्केलिंग है। 1 2 3 4 5 स्केल कर दिया। अब ये 5 स्केल हम किसको देंगे? मान लीजिए टीचर का आपने कहा पंक्चुअलिटी, ठीक है, और आपने कहा कंटेंट डिलीवरी, और आपने कहा कंट्रोल, टेक्निकल, और क्या कहा आपने? स्पीकिंग स्किल, ठीक है। अब ये कितना क्वालिटी हो गया? 1 2 3 4 5 क्वालिटी, ठीक है। अब 5, ये पांचों क्वालिटी जिस टीचर में है उसको हम सबसे बेस्ट रैंकिंग दें। अब कोई टीचर कंटेंट तो जबरदस्त है भाई, मतलब कोई टक्कर का नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कंट्रोल भी कर लेता है, ठीक है, टेक्निकल भी है, स्पीकिंग स्किल भी है, बट पंक्चुअलिटी में कभी टाइम में नहीं आता, हमेशा आधा घंटा लेट, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली एक कैरेक्टरिस्टिक्स कम हुआ तो हम स्केलिंग भी कम कर दिए, ठीक है। अब आ जाइए 3, मतलब आप लोग स्केल करना शुरू कर दिए क्या? आ जाइए 3 पे। अब मान लीजिए एक क्वालिटी अगेन घटा दीजिए, कंटेंट डिलीवरी बहुत अच्छा है लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाते, टेक्निकल भी है, स्पीकिंग स्किल भी है, 360 डिग्री अप्रेजल यहीं पे कर दीजिए आप लोग। ऑलराइट, दिस इज 3rd, ठीक है। हाँ बात ही बता रही हूँ। अब मान लीजिए एक और कम कर दीजिए, चलो कंटेंट भी है लेकिन स्पीकिंग को आप एक्सप्लेनेशन और इलॉबरेट कर दीजिए। एक्सप्लेनेशन ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको कंटेंट जबरदस्त है लेकिन आप डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन पावर नहीं है, तो ये हम हटा दिए, तो ये उसको हम 2nd देंगे, ठीक है। जबकि एक्सप्लेनेशन पावर तो भाई सबसे मेजर होना चाहिए, उसको तो बहुत ही कम आ जाना चाहिए। एक्सप्लेनेशन पावर इज द मेन थिंग, राइट। तो हम अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? बिहेवियर, क्योंकि यहाँ पे बिहेवियर हम लिस्ट किए हैं। एंकर मतलब मार्किंग कर रहे हैं, फिर रेटिंग कर रहे हैं, और एज फॉर स्केल, क्योंकि स्केल पे हम लोग कर रहे हैं। समझ आया? इसको हम लोग बात करते हैं।